Hello students, today I am going to teach you your book Hornbill's poem Father to Son, which was written by Elizabeth Jennings. First of all, introduction of the poet. Elizabeth Jennings, in full Elizabeth John Jennings, was born on July 18, 1926 in Boston, England. She was an English poet whose works relate in intensely uh, personal matter in a plain spoken traditional and objective style, and whose verse frequently reflects her devout Roman Catholicism and her love of Italy. मीन्स ये जो लेसन है आपका ये जो पोएम है आपकी फादर टू सन, ये एलिजाबेथ जेनिंग के द्वारा लिखी गई है, जिनका पूरा नाम एलिजाबेथ जॉन जेनिंग है। इनका जन्म 18 जुलाई 1926 इंग्लैंड के बॉस्टन में हुआ था और ये एक इंग्लिश पोएट हैं। और इनका जो वर्क है बहुत ही पर्सनल मैटर्स पे डिपेंड होता है और बहुत ही प्लेन स्पोकन, बहुत ही साधारण तरीके से अपनी बात को रखती हैं। बहुत ही ऑब्जेक्टिव इनका स्टाइल है, कोई ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं है जो समझ में नहीं आते हों। और जो इनका जो पोएम्स हैं वो रोमन कैथोलिज्म इसके अंदर हमको नज़र आता है, और इटली जो है, इटली को लेकर जो इनका अटैचमेंट है वो हमको इनकी पोएम्स के अंदर दिखता है। नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पोएम। The poem Father to Son is written by Elizabeth Jennings. The poem is about the anguish of a father who doesn't have a good relationship with his son. His son is now grown up and is busy in his life. The father is bitter about the generation gap between them and the feelings of separation. He shares his feeling by saying he doesn't know much about him and there is no sign of understanding. He wants their relationship to be just like when his son was a child. He is trying his best to resolve the issue, but he is in vain. मीन्स ये जो आपकी पोएम है सॉरी ये जो पोएम है एलिजाबेथ जेनिंग के द्वारा लिखी गई है। और इस पोएम के अंदर एक पिता ने अपना गुस्सा दिखाया है कि उसके और उसके बेटे के जो रिलेशनशिप है वो दोनों का रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। जो उनका जो बेटा है वो बेटा बड़ा हो गया है, वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो गया है, और जो फादर है वो कहीं ना कहीं जो उनका जनरेशन गैप आ गया है, उनके बीच में जो डिस्टेंस आ गया है उसको लेकर वो थोड़े से डिस्टर्ब हैं। वो हमको इस पोएम में पढ़ने को मिलेगा। और वो अपनी फीलिंग्स को, वो पिता अपनी फीलिंग्स को बताता है और बोलता है कि मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता अपने बेटे के बारे में, और ना ही हमारे बीच अब किसी अंडरस्टैंडिंग होने के कोई साइन मुझे नज़र आते हैं। वो चाहते हैं कि उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो जाए, जैसे उनका लड़का बचपन में था वो वैसा ही उसको ट्रीट करे, लेकिन वो जो भी प्रयास करते हैं, जो भी कोशिशें करते हैं, वो सारी कोशिशें उनकी व्यर्थ चली जाती है। देयरफॉर दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट, और यही रीज़न है कि वो दोनों अब अलग अलग हो गए हैं। सो दिस इज़ द पोएम। आपको समझ में आ गया होगा कि हम पोएम के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं। Now come to the explanation of the first stanza. Your first stanza is, I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. Yet have I killed the speed I spent or sown it where the land is his and none of mine. What is the meaning of these lines? In these lines, in the above stanza, the poet shares his feeling about his relationship with his son. He says that although they both had lived together in the same house for many years, yet he doesn't understand him. He doesn't know anything about his son's likes and dislikes. He tried to build a relationship with him from the time he was when and small. His son has changed as he has grown up. And the father uses I in the first line to acknowledge his role in his communication gap between them. He says, despite all efforts, his son was in another place that the father cannot assess. They used to talk to each other like strangers, and there was no sign of understanding between them. His child used to look like him, and yet he did not know what his son loved. Means मतलब क्या है इसका? ये जो आपका स्टेंजा है, इस स्टेंजा के अंदर जो पोएट है
वो अपनी बेटे के साथ अपनी रिलेशनशिप को बता रहा है। वो कहते हैं कि भले ही वो दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं कई सालों से, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। वो उसके पिता बोलते हैं कि वो उसका बेटा क्या पसंद करता है क्या नहीं पसंद करता, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, और वो कोशिश करते हैं कि उन दोनों के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप बने, बिल्कुल वैसा ही माहौल हो जाए जब वो बच्चा छोटा था, जैसे वो रहता था वैसा ही माहौल हो, लेकिन वो नहीं हो पाता है। अब उनका जो लड़का है, जो उनका बेटा है, वो बदल गया है क्योंकि वो बड़ा हो गया है। और उन्होंने पोएट ने पहली ही लाइन में आई एक वर्ड का यूज़ किया है, जो कि उनके बीच जो कम्युनिकेशन गैप है, उस कम्युनिकेशन गैप, जो वो बातचीत नहीं कर पाते हैं, जो उनके बीच में डिस्टेंस हो गया, उसको दिखाता है। और वो बोलते हैं कि मेरे कई प्रयासों के बाद भी मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, और अब जो उनका लड़का है वो अब दूसरी जगह रहता है, और वहाँ तक उसके मे बी पॉसिबल कि शायद वो जॉब के लिए वो बाहर रहता हो। तो उन्होंने बोला कि अब मेरा बेटा क्योंकि मुझसे दूर रहता है और मैं वहाँ तक नहीं जा सकता, और जो दोनों हैं वो दोनों जब कभी भी उनकी बात होती है तो बिल्कुल अजनबियों की तरह बात करते हैं, और उनके बीच में अब किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग होने का मुझे साइन भी नज़र नहीं आता। और जब भी वो अपने बच्चे को देखते हैं तो वो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसको क्या पसंद है, वो किस चीज़ से प्यार करता है, लेकिन वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। नाउ कम टू द सेकेंड स्टेंजा। We speak like strangers. There's no sign of understanding in the air. The child is built to my design, yet what he loves I cannot share. Silence surround us. I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his word. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. मीन्स अब इसका मतलब क्या हुआ, देर इज़ अ साइलेंस between them as a child. He was a prodigal son, and now his father wanted him to return to his house that he knows. He didn't want his son to move around and make his own world. He was ready to forgive him and let go of the sorrow he had inside because of him, because of the distance between them. He wanted to love him again. मीन्स वो कहना ये चाहते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग का कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, और फिर वो बोलते हैं कि उन दोनों के बीच में एक चुप्पी है, और जब तक वो छोटा था वो अपने पिता की हर बात को मानता था, और अब उसके पिता चाहते हैं कि वो अपने घर लौट कर आ जाए वापस। ही डिड नॉट वांट टू हिज सन टू मूव अराउंड। वो नहीं चाहते कि वो कहीं घूमे या कहीं पर वो अपना एक अलग सी दुनिया वो बनाए। वो बोलते हैं कि एक बार वो लौट के आ जाए, मैं जो भी उसकी गलतियाँ हैं मैं उसको भूल जाऊँगा, और उसकी वजह से जो भी मुझे दुख लगा है मैं उसको भी भूल जाऊँगा, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी मैं भूल जाऊँगा। बस मैं चाहता हूँ कि एक बार वो फिर से हम दोनों एक दूसरे को समझने लगें, एक दूसरे को प्यार करने लगें। Okay, the son speaks for the first time and explains what he feels. He also feels sad about the distance between them. He shares that he is at a point where he doesn't understand himself. His anger arrives out of his sadness. It is quite clear that on the both side lies the same frustration about the gap in their relationship. They both want to forgive each other, and yet they cannot find a solution to the problem. Both of them put out an empty hand for the other to seek always in vain. मीन्स अब लास्ट की जो लाइन्स हैं, लास्ट की लाइन्स के अंदर बेटे का भी कहीं ना कहीं उसके शब्द जो नज़र आते हैं, वो बोलता है कि मैं भी, वो अपनी फीलिंग्स वो भी नहीं बता पाता, वो भी उदास है, वो भी महसूस करता है कि उनके बीच में एक डिस्टेंस हो गया है, और वो बोलता है कि अब वो एक ऐसे पॉइंट पे आ गया जहाँ अब वो क्या करे उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसकी उदासी से उसका गुस्सा नज़र आता है, और ये यहाँ पर आके क्लियर हो जाता है कि दोनों ही तरफ मतलब पिता के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन है और बेटे के अंदर भी उनके रिलेशनशिप में जो गैप है उसको लेके दोनों के बीच में फ्रस्ट्रेशन है, दोनों के बीच में चिड़चिड़ाहट है, दोनों चाहते हैं एक दूसरे को माफ़ करना, दोनों चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन दोनों जो भी इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए जो ट्राई करते हैं, वो ट्राई जो उनका है वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी ईजी पोएम, बहुत ही आसान पोएम है और ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर है, तो ईजिली किसी को भी जल्दी समझ में आ जाएगी। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, लिटरेरी डिवाइसेस।
ओके, लिटरेरी डिवाइसेस इसके अंदर सिमिली, एलिट्रेशन और मेटाफर को यूज़ किया गया है. सिमिली क्या है? अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स कंपैरिजन एंड शोज सिमिलरिटी बिटवीन टू थिंग्स. इसके अंदर कंपैरिजन दिखाया गया है और सिमिलरिटी दिखाई गई है दो डिफरेंट चीज़ों के अंदर. एक एग्जांपल है एक लाइन का, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, हम दोनों अजनबियों की तरह बात करते हैं. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ लाइक वर्ड आया है तो ये सिमिली है. देन द सेकेंड पॉइंट इज एलिट्रेशन, द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड, इट इज़ द एलिट्रेशन. मतलब अगर एक ही वर्ड का बार बार साउंड आ रहा है तो वो एलिट्रेशन है. जैसे एक लाइन आई है यहाँ पर, द स्पीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, तो यहाँ कौन सा साउंड आ रहा है? एस का साउंड आ रहा है. देन अगेन एक और एग्जांपल है, साइलेंस सराउंड्स अस, इन इसके अंदर भी कौन सा साउंड आ रहा है? एस का साउंड आ रहा है. तो जब बार बार एक ही साउंड रिपीट होता है तो वो क्या है? एलिट्रेशन है. और लास्टली जो है वो क्या है आपका? मेटाफर, एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन अ क्वालिटी. मतलब किसी गुण का अगर हम इनडायरेक्टली अगर उसको कंपेयर करें, शेयर्ड बाय टू पर्सन और थिंग्स, खासकर दो लोगों के बीच में जो अगर क्वालिटी को लेके अगर इनडायरेक्ट कंपैरिजन होगा तो वो मेटाफर है. उसका एग्जाम्पल वही वाला है, द स्पीड आई स्पेंट और शॉन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइंड. सो दीज आर द थ्री लिटरेरी डिवाइसेस. सोन आई सेंड यू द notes of this poem. If you have any doubt in the explanation of the poem, you can ask me. Try to solve the concerned questions of the poem and do it in your fair copy. Till then, goodbye.